Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing extraction process. And what is extraction process? It is the isolation of soluble material from the insoluble plant materials by using the solvent. And the solvent choice of the solvent depends upon the crude drug. In extraction process, we have discussed the maceration, and now we are discussing the percolation. So the word percolation comes from the percolator. Percolation is defined as a technique that involves a percolator. एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं percolator, where finely powdered plant material is soaked in an extraction solvent, allowing the solvent to continuously flow through the bed of the crude drug material to extract the medicinally active substances. So maceration से ये किस तरह से डिफरेंट है कि मैसेरेशन में जस्ट सोक कर दिया जाता है सॉल्वेंट के अंदर आपकी क्रूड ड्रग को. पर्कुलेशन में जो है सॉल्वेंट उससे कंटिन्यूसली फ़्लो करता है, फ्रेश सॉल्वेंट ऐड किया जाता है और जो है एक्सट्रैक्ट वो कंटिन्यूसली फ़्लो करता है. इस तरह से ज़्यादा एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होती है. दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ फ्रेश सॉल्वेंट टू अचीव ऑप्टिमल एक्सट्रैक्शन कंपेयर टू द मैसेरेशन. ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये पर्कुलेटर है, एक कोन शेप जिसके ऊपर लिड है और नीचे इसके टैप होती है फॉर गेटिंग द योर एक्सट्रैक्ट. Percolation word is derived from the Latin perculo, which means flow. Percolator is a device used to extract raw vegetable materials by method of continuous slow flow of a solvent through the raw material layer. Due to continuous flow, extracts that are much richer in active substances than obtained by simple maceration are produced. A vessel is open at both the ends. Okay, this is the picture inside the percolator. At the base you can see this is the drain valve from which the extract is pulled out. There is a perforated plate inside, and above that plate the crude plant material is placed, and above that plant material the menstruum, enough quantity of the menstruum is added. And it is allowed to soak, and when drain valve is opened the continuous flow of menstruum makes your extract. The basic principle behind is the continuous and slow flow of a solvent through raw material column contributes to improving the extraction efficiency. And what really happens, a solvent continuously pass through a packed bed of drug material, dissolves and carries away the desired active component. आपका जो desired active component है उसको लेके वो extract out होता जाता है percolator के अंदर से. The conical shape of percolator was taken from the sugar industry, where conical vessels were used for sugar production. Sugar industry से ये जो है वो इंस्पायर्ड है ये प्रोसेस भी और ये पर्कुलेटर का की पूरी शेप भी. पर्कुलेटर्स यूज्ड इन फार्मेसी वर मेड ऑफ ग्लास, सिरेमिक, कॉपर शीट और एसिड प्रूफ स्टील. ये पर्कुलेशन का प्रोसेस है जिसे इस फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है. सबसे पहले एक क्रूड ड्रग लेके उसको कोर्सली पाउडर कर लिया, फिर उसको मेंस्ट्रुम के अंदर सोक किया गया है and allowed to stand for 4 hours, and after that it is shifted to the percolator, और percolator में enough menstruum add कर दिया गया है and allowed to macerate for 24 hours. 24 hours के बाद उसकी जो है वो drain tap जो है उसको open किया, open the stop cock and allow the liquid to flow. और फिर क्या होता है कि go on adding menstruum and collecting the liquid for sufficient time, and at the end collect the macella, filter, क्लैरिफाई एंड प्रोसीड फॉर कंसनट्रेशन. एंड पे आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाता है जिसको आप फिल्टर कर सकते हैं, कंसनट्रेट कर सकते हैं या ड्राई कर सकते हैं, वट एवर यू नीड. ये सारा का सारा पर्कुलेशन प्रोसेस है. यही जो फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है इसकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट कर लें, अगर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको याद कर लें. एडवांटेज क्या है पर्कुलेशन प्रोसेस का? एडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या है कि ये एक सिंपल प्रोसेस है, लो कॉस्ट प्रोसेस है, and it is efficient than maceration because it allows the fresh solvent to pass through and better extraction, and it is again suitable for the thermally unstable components. maceration की तरह इसका भी यही एडवांटेज है, लेकिन maceration से ज़्यादा एडवांटेज ये है कि ये इसमें से फ्रेश सॉल्वेंट जो है वो पास होता है और ज़्यादा बेटर
एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होती है। इसके अलावा पर्कुलेशन के प्रोसेस को मॉडिफाई भी किया गया है। रीपर्कुलेशन की जा सकती है। उसमें क्या होता है कि जो पर्कुलेट जो एंड पे हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है ना, इसी पर्कुलेट को आप दोबारा पर्कुलेटर के अंदर डाल देते हैं एज ए सॉल्वेंट। इस तरह से जो है सॉल्वेंट कंजम्पशन कम होती है और ज़्यादा बेटर एक्सट्रैक्शन हो जाती है। इसी तरह एक और मॉडिफाइड प्रोसेस है, ये है रिजर्व पर्कुलेट मेथड। इसमें क्या होता है, इन केसेस व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल नीड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट पर्कुलेट इज़ कलेक्टेड एंड सेट असाइड। सबसे पहले जो आपको पर्कुलेट मिलता है, एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसको साइड पे रख लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है मज़ीद पर्कुलेशन की जाती है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। पहले पर्कुलेट में डेफिनेटली एक्टिव इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसको आपने सेट असाइड किया। बाकी जो 2 पर्कुलेशंस या 3 पर्कुलेशंस आपने की हैं, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन कम है, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एंड कंसनट्रेट कर लिया जाता है। लास्टली द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पर्कुलेट इज़ एडेड इन द फाइनल प्रोडक्ट, मेंटेन्स द रिक्वायर्ड अल्कोहल स्ट्रेंथ। जो आपका फर्स्ट जो था, आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था, उसको बाद में कलेक्ट और कंसनट्रेट किए हुए एक्सट्रैक्ट के अंदर मिक्स कर लिया जाता है। उससे क्या होता है कि अल्कोहल की स्ट्रेंथ वही रहती है जो रिक्वायर्ड है। पर्कुलेशन के प्रोसेस से बेलाडोना एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है, ये एक एग्जांपल है इसकी। और दैट्स इट विद द पर्कुलेशन। और नेक्स्ट लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए मज़ीद आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे प्लीज़। थैंक यू।